So welcome to RT Academics, and this is the problem from the topic elongation. So again we are here to calculate the elongation of this given body, but before that we have to calculate one unknown force, which is P2. So how do we calculate that force? So we are going to learn the procedure of this problem. So the question is that a member ABCD is subjected to point loads P1, P2, P3, P4. So following are the forces P1, P2, P3 and P4. Calculate the force P necessary for equilibrium if P1 is 10 kN, P3 40 kN, P4 16 kN. Take E is equal to 2.05 into 10 to the power 5 Newton per m square. Determine the total elongation. तो सबसे पहले हमारा प्रोसीजर वही रहेगा, लेकिन अभी जो हमने लास्ट प्रॉब्लम किया था वहाँ पे जो है कोई अननोन फोर्स नहीं पूछा गया था, इसलिए हमें इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की और चेक लगाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चेक लगाएंगे और चेक नहीं सीधा इक्विलिब्रियम लगा के P2 फाइंड आउट करेंगे। सो फॉर स्टैटिक एनालिसिस हमें पता है कि सारे के सारे फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम 0 होना चाहिए in that particular plane. तो algebraic sum of all forces in horizontal plane should be 0. So I write here, suppose let me take this direction is positive, all the forces, and the force moving this side is negative. So I write here P1. P1 it means 10. So I write directly here 10 kilonewton. So 10 positive. Okay, then P2 is this side. So P2 is unknown, so minus P2, and plus P3 is again leftward, so P3 is 40, and then P4 is this side, so negative 16, so is equal to 0. So from here I can calculate P2. So P2 is equal to like this. So P2 is 10 plus 40 50 minus 16, so that is equal to 34 kilonewton, correct? So we have now all the forces acting at this assembly. Now we have to calculate the force in individual member, like force in this member, and then force in this member, force in this member. So individual forces we have to calculate. So we know that to calculate the deformation we have the like summation PL over AE. Okay, so this is the standard relation we can write here. So if the modulus of elasticity is constant, so it can be taken outside, but the L is variable and A is also varying, and P is we have to calculate individually. So we have to summarize, put all the data like this. So before that we are going to calculate the forces in individual member. तो सबसे पहले नाउ यू कैन सी दिस असेंबली, अगर मैं यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दूं तो P1 हो गया हमारा, P1 इज द 10 kilonewton, so that is the force. Now P2 we have P2 is 34 kilonewton, I write here. Okay, then P3 is here, so P3 is 40 kilonewton. Okay, and then P4 is what is that 16 kilonewton. तो ये चारों फोर्सेस हमारे पास में 1 2 3 4. तो आपको सबसे पहले तो बात ध्यान रखनी इस टाइप के प्रॉब्लम्स में कि जब भी आप लास्ट मेंबर को लेते हो तो लास्ट मेंबर को आपको जो है कोई भी प्रोसीजर लगाने की जरूरत नहीं, पूरा का पूरा फोर्स जो है, जो भी एंड मेंबर पर जो फोर्स है वो उस मेंबर में फ्लो करेगा तब तक जब तक कि क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हो जाता या फिर वेरिएबल नहीं आ जाता। जैसे अगर मटेरियल चेंज हो रहा है तो डिफॉर्मेशन चेंज होगा, अगर एरिया चेंज हो रहा है तब भी डिफॉर्मेशन चेंज होगा, या फिर कुछ उसकी जैसे 3 प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, मटेरियल हुआ, एरिया हुआ, और तीसरा है वहाँ पे लोडिंग आ रहा हो। तो जहाँ पे भी तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक सिंगल क्रॉस सेक्शन आपका है और एक कोई भी फोर्स नहीं है, तो यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन है वो यूनिफॉर्म रहेगा और एक डिफॉर्मेशन हो जाएगा, तो उसके लिए जो लोडिंग रहेगी वो 10 किलोन्यूटन है। सो यहाँ पे अब हम लोगों ने, मैं इसके लिए सपोज इस असेंबली के लिए ए और बी सिंबल यूज करूंगा एंड सी. सो पी ए आई राइट हियर पी ए. ओके, so if I write here PA, so PA by default I write here 10 kilonewton. Okay, and again PB. So at PB you can see here like इस वाली असेंबली पे जो लोड लग रहा है वो हमारा 10 किलोन्यूटन. ओके, 10 किलोन्यूटन का पूरी असेंबली पे पास करेगा. जब आप सेकंड बी लेते हो तो यहाँ पे आप देखोगे लाइक बी जो है आपका असेंबली, उसमें जो है यहाँ पे
कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है ये इस डायरेक्शन में। ओके, तो यहाँ पे जब आप इस सेक्शन, यहाँ पे सेक्शन कंसीडर करोगे तो मैंने बताया आपको एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस, ठीक है, टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सेक्शन। तो ये अगर आपने यहाँ पे सेक्शन कंसीडर किया तो इस सेक्शन पे लगने वाले सारे फोर्सेस का, लेफ्ट हैंड साइड के फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम एंड द फोर्स एक्टिंग एट दैट पर्टिकुलर सेक्शन। ओके, तो यहाँ पे जो है 10 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, प्लस है, एंड माइनस लग रहा है 34 किलो न्यूटन का अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि ये जो असेंबली है इस पे जो है फर्स्ट असेंबली पे 10 किलो न्यूटन का जो फोर्स पूरा फ्लो होगा। उसके बाद में सेकंड जब आप यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ले रहे हो, लाइक यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ले रहे हो, तो मैंने बताया आपको एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन एंड द फोर्स एक्टिंग एट दैट सेक्शन। तो ये जो है इस सेक्शन के सारे लेफ्ट हैंड साइड के फोर्सेज हैं। एक तो ये 10 किलो न्यूटन का ये फोर्स लगेगा जो आपका पॉजिटिव होगा, ओके, इस डायरेक्शन में लग रहा है। उसके बाद में 34 किलो न्यूटन का यहाँ पे जो ये फोर्स लग रहा है आपका, दैट इज ये 34 किलो न्यूटन का, सो माइनस 34 इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स लगेगा वो टुवार्ड्स बॉडी लगेगा और ये 24 किलो न्यूटन होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे 24 किलो न्यूटन का दोनों साइड से इक्वल एंड अपोजिट रहेगा, तभी बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगी। तो बाय डिफॉल्ट आपको 24 किलो न्यूटन यहाँ पे आपने लगा दिया, तो इस बॉडी में जो है कॉन्ट्रैक्शन होगा 24 किलो न्यूटन। थर्ड मेंबर पे जब आप आते हो तो थर्ड मेंबर पे जब हम क्रॉस सेक्शन कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे आपने क्रॉस सेक्शन लिया, तो यहाँ पे एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस टू द लेफ्ट हैंड साइड एंड द फोर्स एक्टिंग एट द सेक्शन। तो यहाँ पे जो है सारे के सारे फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम कर देंगे हम लोग। तो ये P1 कितना होगा, वैसे तो थर्ड मेंबर पे बाय डिफॉल्ट आपका P4 हो जाएगा, सीधा यहाँ पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जो भी आपका P4 आ रहा है इट मीन 60 किलो न्यूटन ही हो जाएगा, आपको नो नीड टू मेक एनी कैलकुलेशन फॉर द लास्ट मेंबर। सो 16 किलो न्यूटन बाय डिफॉल्ट हो जाएगा और ये भी टेंसाइल होगा। अब हमें इसको वेरीफाई भी करना है विद द हेल्प ऑफ द टेकिंग सेक्शन एट दैट पर्टिकुलर सेक्शन। तो हम लोगों ने सेक्शन कंसीडर किया यहाँ पे एंड द फोर्स, यहाँ पे जो पहला फोर्स हुआ 10 किलो न्यूटन जो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव ये है 34, सो माइनस 34 एंड देन ये जो है वापस प्लस हो जाएगा। सो प्लस कितना हो रहा है यहाँ पे P3 इज बेसिकली इज द 40, सो 50 माइनस 34, तो यहाँ पे कितना आ गया 16 किलो न्यूटन एंड दैट इज पॉजिटिव। ओके, तो ये बेसिकली 16 किलो न्यूटन आया पॉजिटिव, तो ये इस मेंबर पे टेंसाइल फोर्स लगेगा 16 किलो न्यूटन का। तो नाउ यू हैव ऑल द फोर्सेस ऑफ each and every member, every section, so now we can calculate the deformation delta. so P, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा, तो P मतलब P1 PA हो जाएगा ये, ओके, और PB एंड PC हो जाएगा ये, लाइक। सो डायरेक्टली आई पुट ऑल द वैल्यूज। सो डेल्टा इज इक्वल टू P इंटू 10 टू द पावर 3, क्योंकि हम लोग सारी कैलकुलेशन न्यूटन पर एम स्क्वायर में ले रहे हैं। हमारा जो मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी है वो भी 2.05 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर में ही है। सो 10 इंटू 10 टू द पावर 3 PL हो जाएगा 1000 ओवर एरिया। सो एरिया वी हैव टू कैलकुलेट फॉर A1 A2 A3। तो इनके लिए मैं कैलकुलेशन करता हूँ, लाइक हम लोग बेसिकली पहले ही कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो A1 A2 A3 ये तीनों की कैलकुलेशन में यहाँ पे। सो A1 पाई 25 स्क्वायर बाई 4, A2 हो जाएगा पाई 50 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 एंड A3 पाई 30 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो ये सारी कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे करेंगे। सो शिफ्ट पाई इंटू 25 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, सो इज इक्वल टू 490.87 एंड सेकेंड शिफ्ट पाई इंटू 50 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, सो दैट इज इक्वल टू 1963.49 and now shift pi into 30 square divided by 4, that is 706.85. so all dimensions are in mm for the length, so mm square all the area. so I put here PL over AE। मैं यहाँ पे एक स्टैंडर्ड वे में समराइज करूँ। सो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा माइनस डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 एंड प्लस डेल्टा 3। कुछ इस तरीके से हम लोग ये जो है स्टैंडर्ड रिलेशन बन जाएगा। तो यहाँ पे जो है सेकंड टर्म में ये बेसिकली आई हैव टू टेक हियर माइनस सो दैट नेट डिफॉर्मेशन कैन बी कैलकुलेटेड। सो PL P is 24 into 10 to the power 3, so L is 600, PL over area is 1963.49, okay, E is
2.05 into 10 to the power 5. So now plus third is PL. So P is 16 into 10 to the power 3 into L. L is, what is the L? L is 800. So this is the L. L is 800. So PL over AE. So now area is 1706.85 into E 2.05 into 10 to the power 5. So final deformation I can calculate like this. Okay, 10 into 10 to the power 3 into again 10 to the power 3 divided by 490.87. okay, divided by 2.05 and divided by 10 to the power 5. So here that is, so the deformation of this portion I write here, delta 1 is equal to 0.09 mm. okay, so this is delta 1 0. अब इसको जो है हम लोग स्क्रीन क्लियर करके यहाँ पे सेव कर लेंगे, शिफ्ट स्टोर ए. सो नाउ दिस वैल्यू हैज बीन सेव्ड okay in the memory. And now delta 2 I am going to calculate. So that is 24 into 10 to the power 3 into 600 divided by 1963.49. okay, and divided by 2.05 divided by 10 to the power 5. That is, the deformation is 0.035 mm. okay, the second deformation is, so now again I save this. once I clear this, shift store okay B में मेमोरी में सेव हो गया है. अब हम लोग थर्ड कैलकुलेशन करते हैं. 16 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 800 divided by 706.85 okay, divided by 2.05 divided by 10 to the power 5. So that is delta okay 3. So I write here delta 3 is equal to 0.088 mm. okay, clear. So this is the deformation. Now all three deformation I sum up here. So delta is equal to delta 1 plus delta 2 plus delta 3. okay, so I directly sum here. So this is the third. So into 1 I clear this, shift store C. तो ये तीनों डिफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं इसमें. तो अब मैं इनको रिकॉल करता हूँ, ऐड करता हूँ डायरेक्टली. सो अल्फा ए प्लस अल्फा बी प्लस अल्फा सी अल्फा सी is equal to, now this is 0.223 mm. So this is the deformation on this paper I have written here. So delta 1 plus delta 2 plus delta 3. So in such a way we can calculate the deformation of such type of problem. And thanks for watching. I hope concept आपको clear हुआ होगा.